Class 9 Physics. Some numerical problems I have done, and here see on page 42 many numerical problems from 41 to 51 are given. You can do them, and again on page 43 graphical questions are given. So let us try one or few for your convenience. Question number 41 on page 42. Page is 42, left page says book. It says a bus increases speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. U is 36 km per hour, V is 72 km per hour, and time is 10 seconds. So it wants acceleration. So first change it into meters per second because time is in second. So it is 36 into 1000 upon 60 into 60. Two zeros are cut, and 6 into 6 is 36, 1. So it is 10 meters per second. Similarly, this 72 can be 72 into 1000 upon 60 into 60. That is 2 zeros. Here is 2. That is 20 meters per second. Now acceleration A will be v minus u upon t by first equation of motion. So it is 20 minus 10 upon 10. That is 1 meter per second square. It is your question number 41. A bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be, here u is given, a is given, time is given. In the final speed or velocity is to be calculated. V is equal to u plus a. Question number 42. V is equal to u plus a. V is to be calculated. U is given in 42, 20 meters per second, and acceleration is 4 meter per second square, and time is 2 seconds. So it is 20 plus 8, that is 28 meters per second. Okay. Then here some problems on graphs are given. I did some of these for your convenience. Now this chapter will be over because you are familiar with most of the questions. Here also I did someone. So state the important characteristics of uniform circular motion. Name 3 forces which brings about uniform circular motion. This is about circular motion which I did in the video. You go through the book and try to solve the numerical problems given in the book, and if problem will arise
I shall discuss it with you in the class. Then second chapter, let us start here. Force and laws of motion. What is force? Force is a push or pull on a body. Force is a push, whether we push the body or pull the body. This is force, and we know that we are pushing, pulling, lifting, stretching, twisting or pressing. These all kinds of actions are example of force applied by us. So, what are effect of force? A force can move a stationary body. If a body is at rest, रुकी हुई है वस्तु, वो चलने लगेगी फोर्स अप्लाई करने से. जैसे फुटबॉल है, किक किया, दौड़ने, मूव किया. ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. कोई चीज़ आ रही है, फुटबॉल आ रहा है, कोई बॉल आ रहा है, कोई व्हीकल आ रही है. व्हीकल मीन्स साइकिल और सम. ऐसे नहीं कि व्हीकल के सामने खड़े हो जाइए, उसको रोक दीजिए, इट्स बैड. फोर्स लगाया, रुक गए. यू कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. कोई चीज़ धीरे चल रही है, उसको पुश किया, दौड़ करके पुश करते गए, स्पीड बढ़ जाएगी. या कोई चीज़ चल रही है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, उसको पीछे खींचना शुरू किया, इसका क्या होगा, स्पीड घट जाएगी. हैं, कोई चीज़ आ रही है, उसको दूसरी तरफ पुश करने लगे, डायरेक्शन बदल जाएगा. तो ये सब चीज़ें चेंज ऑफ डायरेक्शन. जैसे बॉल है, उसको रख करके किसी टेबल पर, किसी सरफेस पर दबाया जोर से, उसका शेप बदल जाएगा. तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं. स्टेशनरी बॉडी को मूव या स्टॉप कर सकता है, और उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या उसके शेप को, उसके आकार को बदल सकता है. ये फोर्स के कारनामे हैं. सो दो तरह के फोर्सेज होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज. बैलेंस्ड फोर्सेज मीन्स इफ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज. जैसे ये मेज है, इस पर दोनों तरफ से, इधर से उधर से हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब वो दोनों बैलेंस हैं आपस में. दो और फोर्सेज साइड बाय साइड लगाए, वो भी बैलेंस कर दिए हैं, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स ये बैलेंस्ड फोर्सेज हैं. लेकिन हम फोर्स लगाकर इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और एक तरफ की ओर जा रही है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्सेज है. तो जब भी मोशन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण ही होता है. अब ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस जितने अमाउंट के होंगे, जिस तरह के होंगे, उसी तरह का फोर्स का इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे. ये है फोर्स का इंट्रोडक्शन. ये पुश या पुल है. अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे. सर आइजैक न्यूटन, और इन्होंने 3 अपने लॉ दिए मोशन के, विच आर नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो लेट अस स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन, विच इज हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट Newton's first law of motion. First law of motion. Try to understand and learn the language of the law. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line
with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. इनका पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। और अच्छी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि a body at rest will be at rest unless it is compelled by an external force, and a body in motion will be continually in motion along that direction or in the straight line unless it is compelled by an external force. So here external, whenever force will be applied, then only there will be change of the position of the body. It is Newton's first law. So a body at rest will be in rest and a body in motion will be. In general language it is said a body at rest or uniform motion will continue in its rest or motion unless acted upon by an external force. कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। तो इस तरह से इसमें इस न्यूटन के नियम में, पहले नियम में दो चीज़ों का वर्णन है। एक तो है कि रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, इसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया और दो तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है फोर्स, जब तक कोई बाहरी बल न लगाता है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल लगाया जाएगा तभी होगी। तो दो चीज़ों को हमको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज इनर्शिया एंड सेकेंड इज व्हाट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। So inertia is the tendency of bodies due to which they continue in their state of rest or uniform motion. Inertia वस्तुओं का वह प्रारंभिक गुण है जिसके कारण वे अपने विराम या गति की अवस्था में बनी रहना चाहती हैं जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाए जाए। ये है इनर्शिया। टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी माने वस्तुओं का ये उनकी प्रकृति है कि वे रुकी रहें तो रुकी रहना चाहती हैं, चल रही हैं तो चलना चाहती हैं, चलती रहना चाहती हैं जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी उनकी प्रकृति को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये दो तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, रहना चाहेगी, और जो वस्तु गति में है, चल रही है, वो गति में रहना चाहेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए, बट यू हैव टू फॉलो द English language and you have to write in that also. So Newton first law मैंने आपको बता दिया। इनर्शिया का मैंने बताया दो तरह की इनर्शिया है, और इसको है क्या, टेंडेंसी ऑफ बॉडी। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वस्तु की प्रकृति जिसके कारण वो अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एंड टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन।
और फर्स्ट लॉ में यही कहा है कि वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती हैं जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस तरह से बल क्या है, फोर्स क्या है? द फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज, फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज, बाहरी कारण है, विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। जैसे इस मेज पर आप अगर कोशिश करें और ये बहुत भारी नहीं है तो आपके फोर्स से या आगे या पीछे बढ़ेगी, पुश या पुल से। लेकिन आप अगर दीवार पर पुश करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हटेगी। हाँ, आपका बल इतना बड़ा है तो दीवार गिर सकती है। जैसे when bulldozer applies force on wall, it shifts from its initial position, it breaks। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ के दो पार्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड फोर्स। इसको आप याद रखिए, अपने बुक से आप पढ़िए। और इन पर बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ के कंटिन्यूएशन में, और ये यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं, फिर आगे चलेंगे।